Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis, we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also, we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors, days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also, we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8 और 9 जनवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। जैसे हम डेली बेसिस पे करते हैं, पहले रिवीजन करेंगे, नोट्स बना के चलेंगे। जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो रिवीजन करते हुए नोट्स बना लीजिए। बाकी आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएंगे आपके। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में बनाना, ज़रूरत नहीं है पूरा लिखा जाए, सारी चीज़ें लिखी जाए, बट वन लाइनर फॉर्मेट में जो इंपॉर्टेंट होगा उसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौन बने हैं वो है प्रणेश। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रणेश पहली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने अभी रिल्टन कप को जीता और इस रिल्टन कप को जीतने के बाद ही ये 79 ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है सीरियम। इनके द्वारा अभी टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022 की डाटा निकाला गया, जिसमें से सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इंडिया का केम्प-कोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये केम्प-कोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटका, बेंगलोर में है। फिर 7th पोजीशन पे आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इन दोनों एयरपोर्ट का डाटा भी याद रखना है। सेकंड पोजीशन पे केम्प-कोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आपका सेकंड पोजीशन पे तो केम्प-कोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 7th पोजीशन पे आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। कौन है? नवीन पटनायक जी। इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पे? राउरकेला में। इंपॉर्टेंट जगह क्यों रह जाती है ये और भुवनेश्वर? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे 2023 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उड़ीसा में, राउरकेला में और भुवनेश्वर में। तो इसीलिए इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? राउरकेला, उड़ीसा में। नाम क्या रहेगा इस हॉकी स्टेडियम का? यह है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मूविंग ऑन, असम की बात करते हैं। ठीक है, असम का याद रखेंगे। अभी रिसेंटली
स्टेट सिविलियन अवार्ड 2023 से यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया गया। और इसमें डॉक्टर तपन साइकिया, ये जो है ना डॉक्टर तपन साइकिया, इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली। और डॉक्टर तपन साइकिया ये क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, एंड इनको किससे, असम वैभव जो कि असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड के पहले पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम से। वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहां पर रहेगा ये है आपका केरला में। केरला में भी कहां पर, त्रिवंतपुरम में रहेगा आपका वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और याद हो तो अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, चेन्नई की, तो तमिलनाडु चेन्नई में पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स भी लॉन्च किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या याद रखनी है, जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है ये किसके लिए होती है, ब्लाइंड लोगों के लिए होती है। इसमें कितने डॉट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स होती हैं जो वेरियसली अप एंड डाउन की उसकी अरेंजमेंट में होती हैं। कोई उभर के आती है, कोई नीचे दबी हुई होती है, जिसकी मदद से जो ब्लाइंड लोग हैं जब इस पे हाथ फेरेंगे तो उनको पता लग जाता है कि ये कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे आपका 4 जनवरी को, और किनकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है ये, लुइस ब्रेल, जिन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट को 1890s में आई गेस यहाँ पर इन्होंने इनको बनाया था। कंफर्म करना, कमेंट करके बताना कि 1896 था या फिर क्या था। 1890s में अराउंड इन्होंने 1886 या 1890s के अराउंड इन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट आ जाता है गान नगाई फेस्टिवल। ये गान नगाई फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम, मणिपुर में ऑब्जर्व करते हैं गान नगाई फेस्टिवल। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और न्यू ईयर के तौर पे भी यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए भी इसको गान नगाई फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रेडिशनल डांस वगैरह होता है और पूरा सेलिब्रेशन होता है मणिपुर में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, भारत पे की बात करें तो भारत पे के जो सीईओ हैं सुहेल समीर, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। और इनकी जगह पे अभी इंटर्म सीईओ आए हैं, और वो इंटर्म सीईओ कौन है, जो कि सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं भारत पे के, नलिन नेगी जी। ठीक, ये अभी क्या बने हैं, इंटर्म सीईओ, और इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। फिर हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। अभी कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलवी प्रभाकर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम कैनरा बैंक की पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ। सुपरनेशन हुआ, मतलब इनकी 60 साल जो या 65 साल जो भी इनकी एज थी रखी गई थी वो पूरी हो गई है, और उसके बाद ही अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली है। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने अभी यूरो करेंसी को ज्वाइन कर लिया है। यूरो करेंसी को ज्वाइन करने से पहले इनकी करेंसी क्या थी, कूनो। ये कौन सी कंट्री है, क्रोएशिया। और इसकी मदद से क्या होगा, अब ये शेनेगन जोन का पार्ट बन गया है। शेनेगन जोन का पार्ट होने का मतलब क्या होता है कि अब ये जैसे जो यूरोपियन नेशंस होते हैं ना, ईयू में यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, इनमें ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल कर पाएंगे। नो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन, किसी इनको यहाँ पे पासपोर्ट की मतलब वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, किसी वीज़ा की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने शेनेगन जोन को ज्वाइन किया एंड अपनी करेंसी कूनो से यूरो पे शिफ्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। मैं फिर बता रहा हूँ नए बच्चों को, नोट्स ज़रूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेशक वन लाइनर बनाओ पर ज़रूर बनाओ, ठीक। चीज़ें रिमेंबर करने में हेल्प रहती है, बाद में भूल जाओगे लेकिन कनेक्ट करने में काम आएंगे ये वन लाइनर नोट्स। फिर हम बात करते हैं इंडिया के पहले फेस्टिवल पे जो कि इंक्लूजन बेस्ड है, ठीक है। जब हम बच्चे जो टीचिंग का कोर्स होता है ना, वहाँ पे एक इंक्लूजन टर्म आ जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली क्या होती है कि हम सबको ना साथ लेके चले। अगर कोई बच्चा डिसेबल भी है, किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, और जो नॉर्मल रेगुलर बच्चे होते हैं, इन सब को एक साथ पढ़ाया जाए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रेगुलर बच्चों को दी जा रही है वो भी डिसेबल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इनको कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल,
ठीक है। इसी को बढ़ावा देने के लिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जो डिसेबल बच्चे हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, और सबको साथ आगे बढ़ाना है, ये एक एम होना चाहिए। और इसी एम को ध्यान में रखते हुए इंडिया के द्वारा उनका पहला फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन सेलिब्रेट किया गया, जो कि था पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन गोवा। आई रिपीट, फेस्टिवल का नाम क्या था? पर्पल फेस्ट कह सकते हैं हम इसको, या फिर पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। कहाँ पर हुआ था ये फेस्टिवल? गोवा में हुआ था। गोवा की ही बात करें तो यहाँ पे पहले भी हमने बात की है साओजाओ फेस्टिवल की, और गोवा में ही आपका नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी लोकेटेड रहेगा। ठीक है। किसके द्वारा कमेंस कराया गया? ये कहाँ पे कमेंस कराया गया? एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा पणजी में। और ये बेसिकली क्या है, 6 से लेके 8 जनवरी के बीच में 2023 में ये हुआ था। यहाँ पे कई सारी लाइव परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन, एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए गए, और बेसिक एम क्या रहेगा कि एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनानी है हमें, जहाँ पे सभी लोग, चाहे वो आपके दिव्यांगन जो, और दिव्यांगन क्या होते हैं, जो बेसिकली डिसेबल लोग होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो आगे साथ मिलके चलें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? इंडिया के पास है। ठीक, कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। जो लास्ट मीटिंग होगी सितंबर में होगी, न्यू दिल्ली में होगी, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखना आपको, G20 जैसे हम जानते हैं तो क्या, ग्रुप ऑफ 20, इसी का एक पार्ट है Y20। Y20 क्या है? यूथ 20। ठीक, यूथ को एंकरेज करने के लिए, यूथ को बढ़ा चढ़ा के, ताकि वो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या जो भी आजकल की हमारी डिजिटाइजेशन देख रहे हैं हम इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं स्टार्टअप ज़्यादा बढ़े, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूथ को एंकरेज करने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए ही ये Y20 एक समिट है। ठीक है। और Y20 समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट कौन कर रहा है? हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है। तो याद रखेंगे, G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और G20 का जो एक आर्म है Y20 यूथ 20, ये भी कहां पर कौन होस्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम? ये इंडिया होस्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी के साथ याद रखेंगे, यूथ 20 की अभी एक इंसेप्शन मीटिंग हुई थी, कहां पर? गुवाहाटी असम में, 6 से लेके 8 फरवरी के बीच में। और इसी के दौरान यूथ 20 का समिट, U20 की लोगो, U20 का वेबसाइट, U20 की थीम, ये सारे यहां पर लॉन्च करी गई इन द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ Y20 समिट, जो कि कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में अभी। ठीक है। और Y20 की मैं बता रहा हूं, जो इंसेप्शन समिट होगी वो कहां पर होगी? वो गुवाहाटी असम में हुई 6 से लेके 8 दिसंबर के बीच में। लेकिन जो Y20 की कर्टेन रेजर इवेंट था, वो Y20 का कहां पे हुआ था? आकाशवाणी रंग भवन में, न्यू दिल्ली में। फिर इंडिया इज होस्टिंग द Y20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्क करेंगे। और Y20 द ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द G20, द फोरम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस इकोनॉमी, जो G20 हो जाता है। ठीक, फिर इसी के ऊपर जो 5 थीम्स रहेंगी Y20 की, बेसिकली वो क्या रहेंगी? फ्यूचर वर्क के लिए, इनोवेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, फिर आपका पीस बिल्डिंग के लिए, ताकि यूथ डेमोक्रेसी में बढ़ चल के पार्ट ले, स्पोर्ट्स में प्रमोट किया जाएगा उनको, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक, और जो यहाँ पे पैनल डिस्कशन रहेगी ना, वो बेसिकली क्या है? हाउ इंडिया कैन हार्नेस इट्स यूथ पॉपुलेशन टू बी अ सुपर पावर। ऑलराइट, तो ये आपका Y20। और इसके जो ये कर्टेन रेजर इवेंट था, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी की। इनके द्वारा भी रिसेंटली एक एस्ट्रो टूरिज्म और स्काई गेजिंग इवेंट को लॉन्च किया गया। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर रहेंगे। अब ये एस्ट्रो टूरिज्म और स्काई गेजिंग इवेंट बेसिकली क्या है? यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा आपके स्पेस को। अब देखो, हम जानते हैं 2022 में, 2020 के बाद से कहें, या फिर हम स्पेसिफिकली कहें तो एलॉन मस्क ने जब से आपका SpaceX लॉन्च किया है, और इन्होंने मार्स पे जाने की बात की है, इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च किया है, तो इस टाइम के बाद से हमने देखा है जो स्पेस का एक एडवेंचर है ना, एक करेज है, वो हमारे यूथ में आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक, हम देख रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन्होंने क्या किया? 13.4 बिलियन पुरानी ओल्ड लाइट के
जो लाइट आई है उसको कैप्चर किया है। इससे क्या होगा, जो एक एक्साइटमेंट है, एक जो करेज है, एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी स्पेस जनरी की तरफ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका इवेंट लॉन्च किया गया था ताकि एस्ट्रोनॉमी बेस्ड बात की जाए, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा बात की जाए, उनको अपनी गाइडेंस वो अपने बाकी लोगों को प्रोवाइड करें, एक्सपर्ट्स से बात कराई जाए, फिर स्टोरी टेलिंग अबाउट द वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उनकी कहानी बताना, क्रिएटर्स ऑफ द मून उनको आप टेलीस्कोप के थ्रू चेक करना, फिर फोटोज़ खींचना वेरियस स्पेस ऑब्जेक्ट्स की। तो ये सारी एस्ट्रो फोटोग्राफी, एस्ट्रो पैनल, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज़, इन सब के ऊपर ये आपका एस्ट्रो टूरिज्म कराया गया था, जो कि एक स्काई गेजिंग एक्टिविटी थी। और किनके द्वारा इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया गया? अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD के द्वारा अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया, वो था स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022। 2022 साल हमारा 5th वार्मेस्ट ईयर था इंडिया का सिंस 1901। ठीक है, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। और इसी में ध्यान रखेंगे, ये जो 5th वार्मेस्ट ईयर था ना इंडिया का सिंस 1901, इसमें हमें देखने को मिला जो एवरेज टेम्परेचर था, एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर वाज अराउंड 0.51 डिग्री सेल्सियस अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो 2016 था ना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें वार्म देखने को मिला था, ज़्यादा गर्मी देखने को मिली थी, विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 0.71 डिग्री सेल्सियस। नॉट जस्ट दिस, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, अभी कुछ टाइम पहले एक डाटा रिलीज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें बताया था कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में जो हीट वेव्स हैं वो इंडिया में बढ़ जाएंगी, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया में एक टेम्परेचर ऐसे रिकॉर्ड लेवल ब्रेक करेगा जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट को भी वो टच कर सकता है। इसी में इन्होंने बताया था कि जो हमारे एयर कंडीशनिंग की डिमांड है आने वाले 4 से 5 सालों में वो 8 टाइम्स हो जाएगी। मतलब करंटली अगर हम जितना AC यूज़ कर रहे हैं उसका 8 गुना बढ़ा दो, हम उतना AC को यूज़ करने लगेंगे। ये सब क्यों है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। आपने देखा होगा अभी यूरोप में जब बर्फ़ पड़ती थी, कड़ाके की ठंड होती थी, वहाँ पर आपके स्नो बोर्डिंग की जाती थी कि बर्फ़ पड़ गई और ऊपर हिल से नीचे स्नो बोर्डर्स आते थे फॉर अ स्पोर्ट, ये एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे, और ये ऐसा बहुत कई सालों बाद हुआ है कि बर्फ़ ही नहीं पड़ी है। वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहा 9-10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ तो गिरी ही नहीं। वहाँ से ज़्यादा तो ठंड हम कह सकते हैं अभी नॉर्थ इंडिया में चल रही है। ठीक, तो ये सारा क्या है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और जो भी हम आप देखेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे, चाहे कोई भी रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात हो गई, कार्बन न्यूट्रल बनने की बात हो गई, जैसे केरला ने किया 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे हम। ये सारी चीज़ें क्या हैं बेसिकली कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और जो हम देख रहे हैं कि हम बात करते थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब वो हमें दिख रहा है कि हाँ देयर इज़ अ चेंज इन क्लाइमेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे, अभी हमने बताया कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसी की वजह से, इसी में जब हमने रिसर्च और डेवलपमेंट की तो हमारा एक फ्यूल निकल के सामने आया जिसको हम ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन काफ़ी तरीके की हो जाती हैं, वो रेड भी होती है, ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है, ऑरेंज भी होती है, येलो भी होती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो सारे हाइड्रोजन होते हैं ना, इनमें जब हम इसको बर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन हमारा रेजिड्यू निकल के सामने आता है। ठीक, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम बर्न करते हैं ना तो कोई भी कार्बन कंटेंट नहीं आता, बल्कि H2O जो वाटर है हमारा, सिर्फ वो हमारा एक रेजिड्यू रहता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हो गया, जैसे अभी हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो कोल को बर्न करने से क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है हमें, बिजली जनरेट हो जाती है, लेकिन कार्बन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। वहीं पर अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करेंगे, एनर्जी भी मिलेगी, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, पानी रेजिड्यू निकलेगा, और मतलब कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, जिससे जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में वो नहीं होगा। और हम जानते हैं कार्बन की वजह से ही हमारा
जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो राइज होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इसी टेक्नोलॉजी पे अब इंडिया हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और हमने अभी देखा था कुछ अराउंड 20,000 करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिया ने सेटअप करने की बात की आने वाले सालों में इन इंडिया, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे बेस्ड होंगे। ठीक, और इसी की नज़र में रखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का कि इंडियन रेलवेज ने अभी इंट्रोड्यूस किया है हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को ऑन द हेरिटेज लाइंस। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना फैले। इसी में ध्यान रखेंगे नॉट जस्ट इंडिया, इवन चाइना के द्वारा अभी एक 600 किलोमीटर रेंज की एक ट्रेन लॉन्च की गई जो कि कंप्लीटली हाइड्रोजन फ्यूल पे रन करेगी। और आने वाले सालों में हम देखेंगे जो उसमें डाटा बताया गया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत चेंज आने वाला है 2025 तक। इवन वी विल स्टडी अबाउट इट रिसेंटली। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम जानते हैं इंडिया मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन कब तक? सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक था। तो अब 5 कंट्री जो नॉन परमानेंट मेंबर थे, जैसे इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे, इनको रिप्लेस कर दिया गया है विद द नेक्स्ट 5 नॉन परमानेंट कंट्रीज। वो हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। अब ये 5 आपके मेंबर रहेंगे आने वाले 2 सालों के लिए, ऑलराइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। आप सब जानते होंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली कि गोल्ड का प्राइस पे आपको बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है सरकार। 8 साल के लिए होते हैं और 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है और 5 साल के बाद आप इनको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते हैं। इस गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होगा कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। ये कुछ 2.5 से 3% के बीच में वेरी करता है। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ना, ये क्या होता है कि आपने अभी मान लो गोल्ड की वैल्यू चल रही है 50,000 रुपये पर तोला। 1 तोले में 10 ग्राम होता है, तो पर तोले के हिसाब से इतना चल रही है। तो मान लो अगर वो बढ़ के 1.5 लाख हो गया, तो आपको 8 साल बाद या फिर 5 साल बाद जब भी आप इनको बेचेंगे तो आपको जितने अमाउंट का गोल्ड है ना, जितना आपने मान लो 10 लाख रुपए से खरीदा था जब वो 50,000 का था, अब वो बढ़ के 3 गुना हो गया, तो 10 लाख का सीधा 30 लाख रुपए हो गया आपका। और आपको फिर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 2.5% इंटरेस्ट भी जो आपको मिल रहा था वो भी मिलता रहेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बोली जाती है कि सरकार पे पैसा दिया, सरकार को दिया, और बिल्कुल क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज़ है ये आप एरोड नहीं होती, किसी केमिकल का इस पे इफेक्ट नहीं होता, ना इसमें रिडक्शन होती, ना इस पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जैसा 10 साल पहले था, 1000 साल पहले था, लाख साल पहले था, ये अभी भी वैसा रहेगा। और इसीलिए दुनिया इसको एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे यूज़ करती है कि जो करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा पिछले कुछ 2 से 3 सालों में जो ग्राफ है वो इंडिया का, रशिया का, इन कंट्रीज़ का बढ़ गया जिन्होंने गोल्ड परचेज किया है। इवन आप देखेंगे गोल्ड की वैल्यू पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इवन अब बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो गोल्ड की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये तो गोल्ड की बात हो गई। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? ग्रीन का मतलब हमारा, मैंने बता रखा, कभी भी ग्रीन की बात है ना तो ये समझ लेना हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट पे हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, अब हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेस्ड हो। तो इन सारे डिमांड्स को मीट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही सरकार को पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे? वो इन बॉन्ड्स से जनरेट करेंगे कि हम ग्रीन बॉन्ड्स बेचेंगे और इससे जो हमारा पैसा इकट्ठा होगा ना, हम उसको आगे फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन रिडक्शन की तरफ बात की जाएगी। आरबीआई ने ही ये 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया है। 2 ट्रांचेस में इनको लॉन्च किया जाएगा 8,000 करोड़ के ईच की ट्रांचेस में। जनवरी और फरवरी 2023 में ये ट्रांचेस 8,000 करोड़ रुपीस ईच की लॉन्च की जाएंगी और लोग इन पे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने सॉवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए, ऐसे ही नाबार्ड ने 5,000 करोड़ रुपीस लॉन्च किए हैं इन द 3-ईयर बॉन्ड। ठीक है, ये 3-ईयर बॉन्ड में इन्होंने बोला कि 2,000 करोड़ रुपए तो वैसे हम आ जाएंगे, और अगर किसको ग्रीन बॉन्ड्स में भी इन्के अलग से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड्स, उसमें
3,000 करोड़ रुपए। तो टोटल देखा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी रेज कर लिए हैं थ्रू दिस 3 ईयर वाया बॉन्ड्स। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है कि हम जानते हैं अभी बजट आने वाला, हमारा फरवरी में बजट लॉन्च हो जाएगा। तो इस बजट कैसा रहेगा, किस सेक्टर पे हम हैवीली डिपेंडेंट होंगे, किस सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, सरकार किस सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करेगी, किस में कितना अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करने की बात की जाएगी, वो सारा दिया गया है। तो उस हिसाब से ही हम देखते हैं आगे कि जो हमारा एस्टिमेट बनता है कि जो हमारी मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, वो किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात करेगी, कहाँ पे हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने की बात की जाएगी, वो यहाँ से देखा जाता है। और हम इवन अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ है ना, वो बात की जा रही है, वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो लगता है कि अभी काफ़ी कंट्रीज़ में, यूरोपियन नेशंस में तो करंटली रिसेशन चल ही रहा है। इवन अगर आपने सुना हो, 2-4 दिन पहले न्यूज़ आई कि 18,000 स्टाफ को ले ऑफ किया जाएगा बाय अमेजॉन। ठीक, ये क्या है, नॉट जस्ट अमेजॉन, आप देखेंगे बहुत अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी ले ऑफ कर रही हैं। रीज़न क्या है कि रिसेशन बोला जा रहा है, मंदी आने वाली है पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया एस्केप कर देगा इस सिचुएशन को। क्यों? 1-2 फैक्टर हैं, जैसे इंडिया में चीप लेबर है। ठीक, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, लोगों का जो पहले ही हम देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है वो बहुत कम होती है, वो चीप लेबर में आ जाता है। तो इंडिया कहीं ना कहीं हम देखेंगे ग्रोथ पर है। इंडिया में जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, वहाँ पे रशिया से इंडिया ने अच्छा टाई अप किया। अब नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स की बात की जा रही है, इंडियन रुपी में ट्रेड करने की बात की जा रही है। ई रुपी यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि ट्रेड कर सकें दूसरी कंट्रीज के साथ। इवन आप देखेंगे श्रीलंका में भी इंडियन रुपी यूज़ करने की बात की जा रही है कि फ्यूचर में वहाँ पे इंडियन रुपी यूज़ हो सकता है। इवन अभी तो एक न्यूज़ भी पास की गई थी कि 8 लाख रुपए तक के करेंसी, इंडियन करेंसी को, रुपीज़ को वहाँ के श्रीलंका के लोग रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि श्रीलंका इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम कहीं ना कहीं ध्यान में रखें तो दिखता है कि इंडिया रिसेशन को एस्केप कर जाएगा और इंडिया की ग्रोथ कुछ 5 से लेकर 7% के बीच में रहेगी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया था। ये 7th एडिशन रहेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की। अब देखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स बेसिकली क्या हो गए कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ को ही नहीं, जो हमारे यूथ है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करना, उनको जागरूक करना, उनको बढ़ावा देना, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराना कि जो डिजिटाइजेशन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप देखेंगे, जो यूपीआई लॉन्च किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इट वाज अ सक्सेस। इन यूपीआई ने पूरी जो आपकी फाइनेंस है, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो होती है, ये ट्रांजैक्शन होती है, उसका गेम चेंज कर दिया बिल्कुल। हर दुकान में आप देखेंगे, हर शॉप में आप देखेंगे यूपीआई का यूज़ हो रहा है, हर दुकान में बारकोड यूज़ हो रहा है, लोग अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। इट इज़ अ गेम चेंजिंग, एक ये रेवोल्यूशन आया है बिल्कुल। इवन आप देखेंगे हर स्टार्टअप में आजकल, आप चाहे एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए, आप चाहे फाइनेंस से रिलेटेड देख लीजिए, आप चाहे बैंक देख लीजिए, इन सबको अब क्या है, डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। ये पहले जो नॉर्मल मेथड कैसे भी रन करते हो, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो डिजिटाइज होगा और हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर स्टार्टअप को, हर कंपनी को वो डिजिटल होना ही पड़ेगा, ऑनलाइन आना ही पड़ेगा ताकि वो सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे, 7वां एडिशन था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, 7 जनवरी को प्रेजेंट किए गए थे, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किए गए थे। ठीक, याद रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो है ना, बेसिकली 7 कैटेगरीज में आपको ध्यान रखना है जो प्रेजेंट किए गए हैं विनर्स को। डिजिटल इनिशिएटिव्स एट ग्रास रूट लेवल, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट्स में, डाटा शेयरिंग एंड यूज ऑफ फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स, बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव्स complying with GIGW and accessibility guidelines। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एक्ट्रेस डायरेक्टर अर्पणा सेन। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द 15th
JIFF क्या है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो इंडियन एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर अर्पणा सेन काफ़ी दिग्गज महिला है ये और इन डायरेक्टर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 15th एडिशन ऑफ द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि जयपुर राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सुरेंद्र चावला। इनको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, और इसके लिए अप्रूवल किनके द्वारा दी गई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है किनको? सुरेंद्र चावला को, टू बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अभी क्या है, सुरेंद्र चावला ये करंटली हेड है ऑफ द ब्रांच बैंकिंग एट आरबीएल बैंक, जिसको हम पहले रत्नाकर बैंक बोलते थे। ठीक, मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बीआईएस के द्वारा एक लॉन्च किया गया पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। अब देखो क्या है कि स्टार्टअप्स हो गए जैसे, या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो गए जहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट्स ही नहीं है, या फिर कोई स्टार्टअप हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रियल हो गया, उनको कोई इंडस्ट्रियल यूनिट यूज़ करनी है या फिर लेबोरेटरी यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक, क्या उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या नहीं, बेसिक वेरियस कई सारी टेस्टिंग होती है एक प्रोडक्ट की। तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरी सेटअप की गई हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे लोग आके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ही बीआईएस के द्वारा अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, मैपिंग दी जाएगी ऑन द पोर्टल। ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 76 फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया, जो कि किसका है? बीआईएस का 76 फाउंडेशन डे। कब था? 6 जनवरी को था 2023 में। ठीक, 6 जनवरी 2023 को 76 फाउंडेशन डे के दौरान बीआईएस के पीयूष गोयल ने एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। और जैसे मैंने बताया, ये क्या रहेगा आपका कि लोग अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ऑलराइट। इसी के साथ साथ क्या है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी प्रोवाइड कराना कि कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, कैसे क्लाइमेट की तरफ वर्क करना चाहिए, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मेंटर कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। नॉट जस्ट दिस, इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्नैप क्या है? स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान 2022 से 2027 के लिए लॉन्च किया गया। और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, उसको और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज है, उन सबको एक साथ आगे बढ़ाना है। ठीक है, हमें यह नहीं करना कि हम इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अवॉइड कर दें, सस्टेनेबिलिटी को अवॉइड कर दें, क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर दें और बस इंडस्ट्री पे ध्यान दें। वो नहीं है, वो तो अभी तक हम कर ही रहे थे, लेकिन इन सबको एक साथ आगे लेके चलना है हमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन ट्रेन बन रही है चाइना में। चाइना ने एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया विद अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। एक टैंक में अगर हम उसको फुल टैंक भरते हैं तो 600 किलोमीटर ये चलती है। 160 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। चाइना के द्वारा ये एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया। बाय 2025 China plans to roll out another 50,000 hydrogen fuel cell vehicles with a target of producing 1 लाख से 2 लाख टन हाइड्रोजन एनुअली फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, और इन सितंबर 2022 ऑलस्टॉम कोराडियल, ये जो जर्मनी की कंपनी है, ये वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा काफ़ी प्रोफेशनल, एक काफ़ी रिनॉन्ड टेनिस प्लेयर है। ये इंडियन टेनिस प्लेयर है, लेकिन ये अभी अपना रिटायरमेंट की बात कर रही है। 36 साल की है और इन्होंने बोला कि दुबई में जो अभी इवेंट होगा वो इनका लास्ट इवेंट होने वाला है। वीमेंस टेनिस एसोसिएशन का 1000 इवेंट जो दुबई में होगा फरवरी में 2023 में, वो इनका लास्ट इवेंट रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा अभी रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा के द्वारा ऑथर की गई एक बुक रिलीज की गई, वो है मुख्यमंत्री डायरी
1। यह मुख्यमंत्री डायरी 1 किसके द्वारा ऑथर की गई? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। रिलीज या लॉन्च किसके द्वारा की गई? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर चंद्रचूड़ जी। 49th कौन है? उदय उमेश ललित जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए, इनको फंडिंग प्रोवाइड जरूरत होती है तो फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए, तो इन एसएमईज को प्रमोट करने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए अभी रिसेंटली बीएसई ने एक एमओयू साइन किया गोवा गवर्नमेंट के साथ। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है और बेसिकली ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं गोवा में, इनको बढ़ावा देने के लिए ही ये एमओयू साइन किया गया, जिससे क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की बात की जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, फंडिंग की जरूरत है, वो प्रोवाइड यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने अभी सेलिब्रेट किया चेरा चेरा फेस्टिवल। ये चेरा चेरा फेस्टिवल रायपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल चेरा चेरा फेस्टिवल है जो कि रायपुर में ऑब्जर्व किया गया। फुल नाइट पे ऑब्जर्व किया जाता है और जब किसान अपनी फसल को काट के कल्टीवेशन के बाद घर ले जाता है तब इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस। तो ये चेरा चेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। इंडिया का पहला फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट किया गया गोवा में। Y20 समिट जो कि G20 की समिट है, इंडिया Y20 समिट इंडिया कर्टेन्स रेजर इवेंट और यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया थीम्स ऑफ द Y20 समिट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने इनॉग्रेट किया एस्ट्रो टूरिज्म को स्काई गेजिंग इवेंट। IMD 2022 की बात करें तो ये इनके हिसाब से 5th वार्मेस्ट ईयर था इंडिया का सिंस 1901। इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को ऑन हेरिटेज लाइंस। न्यू मेंबर्स ज्वाइन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो पुराने पास थे उनको रिप्लेस करेंगे फॉर 2 years। RBI टू इशू मेडन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर 16,000 करोड़ रुपीज, 2 ट्रांचेज में लॉन्च किएंगे 8,000 करोड़ रुपीज ईच। नाबार्ड ने रेज किया अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज वाया 3 year बॉन्ड। फिर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिया की GDP लाइकली टू ग्रो एट 7% इन फिजिकल ईयर 23। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया डिजिटल इंडिया अवार्ड जो कि 7th एडिशन था 2022 का। इंडियन एक्ट्रेस डायरेक्टर अर्पना सेन इन्होंने रिसीव किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 15th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ सुरेंद्र चावला एज द न्यू CEO ऑफ द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। BIS ने लॉन्च किया एक पोर्टल फॉर मैपिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। चाइना ने लॉन्च किया एशिया का पहला सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन विद अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने रिलीज किया असम के चीफ मिनिस्टर की बुक जो कि है मुख्यमंत्री डायरी 1। BSC ने साइन किया एक MOU विद गोवा गवर्नमेंट टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ SMEs और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने सेलिब्रेट किया चेरा चेरा फेस्टिवल रायपुर झारखंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेशन पे। पहला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। सेकेंड, विच कंट्री डेवलप्ड द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 countries कॉल्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। Third, which union ministry launched the draft online gaming policy? Fourth, which article of Indian Constitution deals with the right to freedom of speech and expression? Fifth, what is the outlay of the broadcasting infrastructure and network development scheme? तो दोस्तों ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज लाइक द वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें और ये सेशन डेली बेसिस पे होता रहे, पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करके बताना है, तभी हमें पता लगेगा, तभी हमें लगेगा कि हाँ इस सेशन की ज़रूरत है और बच्चे डिमांड कर रहे हैं और हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends,
if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.